So let's begin with our lecture number 14 on geometric optics. So in the last lecture we were discussing the refraction through the spherical surfaces. ठीक है, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे. रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सर्फेसेस में एक कॉन्सेप्ट रह गया था हमारा, मैग्नीफिकेशन, लेटरल मैग्नीफिकेशन रह गया था. ठीक है, तो वी विल सी दैट. और आज हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक विच इज़ आर लेंसेज. ठीक है, सो लेंसेज इज नथिंग बट इफ़ यू सी द टू spherical surface, they we take a part of two spherical surface and they together will make a lens, will make a lens. ठीक है, and so in today's lecture mostly our discussion will be on the lenses. We will try to see what are the lenses, what is the nature of the lens, why it is diverging, why it is converging. ठीक है, we'll see the different nomenclature related with the lenses. Again the focus, there are two set of focus here. ठीक है, तो focus के बारे में देखेंगे. Then we are going to discuss about the power of the lens. So different nomenclature देखा जाएगा. फिर दो चीज़ें और जो important रहेंगी हमारी, जो हम देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला देखेंगे. ठीक है, one is this one, we'll try to derive it and then we'll see the application of it, and then another thing is we are going to see the lens formula. ठीक है, so which is a part of lens maker formula, से ही हमारा lens formula निकलेगा. So these two things we are going to see. ठीक है, so that is the scope of today's lecture. So now let's begin. So हम स्फेरिकल सरफेस पे देख रहे थे. स्फेरिकल सरफेस है हमारा. ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, रियल ऑब्जेक्ट इज बीन प्लेस्ड हियर. ठीक है, लाइट यहाँ से गई. ठीक है, इट इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज दिस इज माई डेंसर मीडियम, दिस इज माई रेयर मीडियम. ठीक है, लाइट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, नाउ व्हेन द लाइट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड another one is के another light is going to go here and unbend, it is going to go here. ठीक है, light is here, it will go and no bending and it will go here. ठीक है, तो we can easily find out कि यहाँ पे हमारा जो इमेज बनेगी for this A की जो इमेज बनेगी, we can find out with from our formula mu2 over v minus mu1 over u is equal to mu2 minus mu1 divided by r. ठीक है, इससे मैं निकाल सकता हूँ अपना ये v की वैल्यू में निकाल सकते हैं. u हमारे को गिवन है. ठीक है, एंड r is been given to me. ये आ जाएगा मेरे पास. नाउ आई नो के वी कैन ईजली, ये मेरे को पास पता लग गया, तो माई इमेज विल बी समवेयर है. ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ए बी का कितना हुआ. तो यहाँ से इफ़ आई टेक बी से, इफ़ आई टेक इसके सेंटर तक रे एंड देन फ्रॉम हेयर इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड हेयर. ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, दिस इज़ माई इंसिडेंट, दिस इज़ माई रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा. नाउ आई नो कि यहाँ पे it should be at this point जो A होगा, and we can extend it and we will get to know कि it is going to intersect at this point. ठीक है, इस वाली रे को it is going to get intersect at this point for this V. ठीक है, this is my V. ठीक है, so from here we will see this is our object. ठीक है, now we'll find out the to get the magnification we have to see what is my A dash B dash divided by AB. ठीक है, so this is our lateral magnification. So we'll find out the height of my object divided by height of my image. Sorry, height of the image divided by height of our object. So magnification is our image height, that is a dash b dash divided by your object height. ठीक है, so here we have seen कि हमारा image is coming out to be inverted here. ठीक है, तो we'll put it minus a dash b dash divided by ab. ठीक है, now we'll see it in terms of our v, u and mu. ठीक है, हमारे पास अभी u है, v है और mu1 mu2 है. तो we'll try to figure out our magnification in terms of v, mu, v अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड आर रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडियम. ठीक है, सो उसके लिए हमारे को पता है विल अप्लाई द एक तो हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेंगे. ठीक है, दैट इज ऑल ओवर द ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स विल बी यूजिंग द स्मॉल एंगल एजम्पशन. ठीक है, और यहाँ पे another thing is we are going to use the Snell's law here. Snell's law यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो it is mu1 sin i is equal to mu2 sin r. ठीक है, तो ये हमारा आ गया स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से हमारा आ गया. वी कैन राइट इट डाउन sin i is equal to tan i, sin r is equal to tan r. ठीक है, तो sin i यहाँ पे sin i और sin r मैंने लिख दिया, that is mu2 over mu1. नाउ I'll change it to tan i over tan r. ठीक है, that is a small angle approximation हमने लगा दिया यहाँ पे. tan i आप क्या लिख सकते हो, दिस इज योर i, tan i will be your this divided by this. ठीक है, तो आपने लिख दिया ab divided by pa. सेम वे आप लिख सकते हो your tan r is nothing but your a dash b dash divided by pa dash. ठीक है, so that is you can write it down. now हमारे को क्या चाहिए, you need a image height over object height. image height कितनी है आपकी, that is a dash b dash. ठीक है, तो यहाँ पे you can write it down a dash b dash divided by b is equal to, now हेयर जो हमारा p, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया. नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज हेयर. ठीक है, तो यहाँ पे हम पी ए डैश की जगह नहीं, हम लोग यहाँ पे हेयर विल पुट द वैल्यू माइनस हेयर. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपका ए डैश बी डैश ओवर ए बी आपका ये आ जाएगा. ठीक है, दैट इज़ पी ए डैश डिवाइडेड बाई म्यू ओवर टू
पी ए डिवाइडेड बाई म्यू वन, ठीक है। नाउ आपका जो पी ए है यू कैन पुट द वैल्यूज हेयर, ठीक है, इसको बिकॉज नाउ द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज दिस एंड यू आर ट्रैवलिंग, यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, सो इट विल बी आपका जो होगा ए बी जो होगा दिस विल बी माइनस यू, ठीक है। तो विल पुट द वैल्यू ऑफ माइनस यू हेयर एंड नाउ हेयर आई नो कि जो मैग्निफिकेशन है द ए बी डैश इज नेगेटिव हेयर, ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट वी डिवाइडेड बाई म्यू टू डिवाइडेड बाई यू डिवाइडेड बाई म्यू वन, ठीक है। सो हमारा जो हमने वी हैव सीन दिस मैग्निफिकेशन अर्लियर ऑल्सो इन आर मिरर्स में भी देखा था हमने मैग्निफिकेशन, सो इन द मिरर्स ऑल्सो वी हैव सीन देयर द मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। तो देयर वी आर स्टडिंग द रिफ्लेक्शन फिनोमेना, रिफ्लेक्शन में दे बोथ आर इन द सेम मीडियम, ठीक है, सो दैट्स वाई म्यू वहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे इट इज़ गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए लेटरल मैग्निफिकेशन में विल सी वी आर हैविंग द म्यू, बोथ द म्यूज आर कमिंग, ठीक है। सो दैट इज आर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई म्यू टू डिवाइडेड बाई यू डिवाइडेड बाई म्यू वन, ठीक है। सो दैट इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है। अब इसमें एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन पुट द वैल्यूज लेटर ऑन यू और वी की वैल्यू टू गेट द मैग्निफिकेशन, ठीक है, वेदर इट इज़ इन्वर्टेड वेदर इट इज़ इरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही था। अब क्वेश्चंस देखते हैं इस पर टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हमारे को एक पेंसिल दे रखी है, दिस पेंसिल इज बीन गिवन फ्रॉम दिस सरफेस, ठीक है, ये मेरे को एक 1 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, दैट इज सॉरी रेडियस दे रखा है, द पेंसिल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम द स्फेरिकल ग्लास, ठीक है, ये 1 मीटर अवे रखी है फ्रॉम द स्फेरिकल ग्लास, ठीक है। इस तरीके से मेरा स्फेरिकल ग्लास बॉल है जिसका रेडियस मेरा 25 सेंटीमीटर है, दिस माई 25 सेंटीमीटर, द ओवरऑल विल बी 25 50 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मेरे को, इसका 1.5 दे रखा है। द वी हैव टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द पेंसिल एंड इट्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो फाइनल इमेज के लिए हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ से इंटरफेस होगा, ठीक है, ये वाला इंटरफेस आएगा, तो पहले यहाँ से मेरा ये स्फेरिकल मिरर आएगा जिसकी वजह से मेरी एक इमेज 1 बनेगी, ठीक है। फिर इमेज 1 को आई विल टेक इट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस एंड आई विल फाइंड आउट द फाइनल इमेज, ठीक है। तो दिस इज माई सरफेस 1 सरफेस 2, तो वी हैव टू फाइंड आउट द इस पेंसिल का we have to find out the magnification of the pencil and we have to find out कि पेंसिल की पोजीशन क्या है, ठीक है। दिस बोथ द थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट, और हमें बाहर का जो म्यू दे रखा है दैट इज माई म्यू वन, ठीक है। तो विल फाइंड आउट द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड फ्रॉम ग्लास सेकेंड रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाली देखते हैं इस वाले सरफेस के लिए, तो इस वाले सरफेस के लिए देखते हैं, हमारा फॉर्मूला ये है म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड, नाउ यू विल पुट द वैल्यूज एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, दैट इज -100, तो आई पुट द वैल्यू -100, ठीक है। नाउ इट इज ट्रैवलिंग, म्यू टू क्या है, म्यू टू आपका दिस वन है, दिस इज योर म्यू टू हेयर म्यू वन हेयर, ठीक है। तो म्यू टू इज योर 1.5 डिवाइडेड बाई वी, जो हमें निकालना ही है, तो जो हम निकालते हैं उसकी वैल्यू नहीं डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। -1 डिवाइड बाई -100 जो कि मुझे गिवन है दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ही हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई मेरे को रेडियस गिवन है, तो रेडियस इसका इधर की साइड में आएगा, दैट इज डायरेक्शन ऑफ लाइट की डायरेक्शन में आएगा, तो इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने 25 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट द वैल्यू, वी की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 150 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, विल फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन, हमें ये मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो फाइनल मैग्निफिकेशन के लिए हमें पता है मैग्निफिकेशन अगर हमें फाइनल निकालनी है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई m1 इंटू m2 जितने भी हमारे होते हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करके विल गेट द फाइनल मैग्निफिकेशन। तो हम m1 निकालते हैं फर्स्ट मैग्नीफाइड, इसके बाद इससे रिफ्लेक्ट करके कितना मैग्निफिकेशन होगा दैट वी हैव सीन इन द लास्ट स्लाइड, दैट इज v डिवाइड बाई म्यू टू इज डिवाइडेड बाई यू डिवाइडेड बाई म्यू वन। v हमारा आ गया 150, ठीक है, और म्यू टू इज़ योर 1.5 विद द साइंस डालना है यहाँ पे, आपका u कितना है दैट इज -300 हेयर, और v आपका इधर बन रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, तो v शुड बी समवेयर हेयर आ रहा होगा, ठीक है, बिकॉज 50 ये है तो 100 ये हो जाएगा, तो समवेयर हेयर विल बी योर v। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गई, योर मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी -1, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे -1 बन जाएगा नीचे, ठीक है। नाउ इस वाले सरफेस के लिए देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले सरफेस के लिए नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। तो नाउ इस वाले सरफेस के लिए ये मेरा यहाँ पे ऑलरेडी कितना था, ये यहाँ से 150 है, ठीक है, दिस इज़ 150 फ्रॉम हेयर, तो इस वाले सरफेस से यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज़ माई 50, तो इट विल बी 100 हेयर, फ्रॉम हेयर इट विल बी 100, ठीक है। सो दैट वी हैव गॉट इट। नाउ यू जो है आपका, लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में मैं मेजर कर रहा हूँ, तो नाउ यू विल बी +100 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यू इज़ योर +100 आ गया, ठीक है। नाउ
radius of curvature will be here because light is traveling in this direction and you are measuring from here opposite direction of the light, so radius of curvature comes out to be negative. Now आपका this will be your mu1 and air जो होगा आपका air का जो refractive index होगा that will be your mu2. Now we'll put the values, so 1 divided by v minus mu1 divided by plus 100, ठीक है, is equal to mu2 1 minus this divided by आपका radius of curvature will be this side. इससे हमारा v comes out to be equal to 200/7 आ गया, ठीक है. नाउ मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, इसकी मैग्नीफिकेशन विल बी वी डिवाइडेड बाय म्यू2 अब आपका एयर है डिवाइडेड बाय यू डिवाइडेड बाय म्यू1, यू आपका पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है. तो इससे हमारा मैग्नीफिकेशन आ गया 3/7. नाउ टू गेट द टोटल मैग्नीफिकेशन विल डू m1 माइनस m2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट -3/7 इज द मैग्नीफिकेशन. तो विल गेट एन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, इन्वर्टेड एंड अ डिमिनिश्ड इमेज वी आर गोइंग टू गेट आफ्टर दिस टू रिफ्लेक्शन, ठीक है, राइट. We'll move on to the next question. So यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, sphere of the radius r is made up of refractive index mu2, ठीक है. ये मेरा sphere दे रखा है जिसका refractive index is mu2 is placed in a medium of refractive index mu1. ये बाहर मेरा है, मेरा refractive index is mu1. Where would be the object be placed so that the real image is equidistant from the sphere, ठीक है. तो मेरे को ये बताना है कि मैं where should I place the object सो दैट मेरी जो रियल इमेज बनेगी, ठीक है, ये जो रियल इमेज बन रही है दैट शुड बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द स्फीयर, ठीक है. तो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है पोल से, दिस p1 शुड बी इक्वल टू p2, ये दोनों मेरा इक्वल होना चाहिए, दैट इज दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है. सो वो किस केस में बनेगा, अगर आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, देन फर्दर रिफ्लेक्शन होगा, तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी इक्वल टू दिस. आपका ये फाइनल कब बनेगा, व्हेन यू हैव द दिस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. व्हेन दिस रे इज पैरेलल टू, जब यहाँ से रे गई ये रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी. व्हेन दिस रे विल बी पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, देन यू विल से कि हमारा जो यहाँ से फिर अगेन सेम कंडीशन है जहाँ पे बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर इस जगह भी सेम है, इस जगह भी सेम है. यहाँ पे क्या है, बस हमारी आर कंडीशन ऑफ द म्यू इज चेंजिंग हमारा, ठीक है. बाकी हमारा ज्योमेट्री इज सेम बिकॉज रेडियस इज सेम हमारा, ठीक है. सो नाउ इन दिस कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, तो इन दिस कंडीशन यहाँ पे आपकी दैट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड it is going to bend away from the normal, it is going from denser to rarer medium, it is going to bend away from the normal, and with the symmetry we can see it is going to intersect with the principal axis at the same distance, x के साथ distance पे बनेगी, ठीक है. So that is the condition for the equidistant real image symmetrical through the sphere, ठीक है. This should be symmetrical through the sphere, this should be parallel to your principal axis, ठीक है. So in that case क्या होगा, हमारा जो म्यू1 होगा, भाई हमें ये निकालना है, डिस्टेंस निकालना है x, तो आपका म्यू1 कितना हो जाएगा, विल पुट द वैल्यू, विल अप्लाई द फॉर्मूला है, ठीक है. तो आपका u कितना हो जाएगा, दैट इज -x, v क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी है, ठीक है. v आपका इन्फिनिटी हो जाएगा बिकॉज वी आर टेकिंग पैरेलल हेयर, तो ये हो जाएगा म्यू2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, माइनस म्यू1 डिवाइड बाई -x, ठीक है. दैट विल बी इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय, तो इससे आपका जो x आ जाएगा, दिस इज योर x, ठीक है. फॉर दिस x you will get the same equidistance image here on the x side, ठीक है. and the condition is it should be parallel to your principal axis when it is going inside the reflecting in the denser medium, right. नेक्स्ट देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, फिगर शोज ए ट्रांसपेरेंट हेमिस्फेयर, ठीक है. इस तरीके से हमारा ट्रांसपेरेंट हेमिस्फेयर दे रखा है जिसका रेडियस मेरे को दे रखा है 3 सेंटीमीटर, मेड अप ऑफ द मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरे को म्यू दे रखा है, ठीक है. अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द हेमिस्फेयर एज शोन द फिगर, इस तरीके से नैरो बीम ऑफ लाइट इज बीन इंसिडेंटिंग ऑन इट और परपेंडिकुलर जा रही है तो इट विल गो स्ट्रेट हेयर, ठीक है. नो डिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा बट बेंडिंग नहीं होगी, सॉरी, ठीक है. रिफ्लेक्शन विल बी देयर बट देयर विल नॉट बी एनी बेंडिंग. आर द रेज टोटली रिफ्लेक्टेड इन द प्लेन्स, टोटली रिफ्लेक्टेड एट द प्लेन सरफेस, मेरा मतलब है यहाँ पे ये कह रहा है कि जब ये लाइट यहाँ पे आएगी इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे, इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड हेयर, ठीक है. ऐसे रिफ्लेक्ट होगी या ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वी हैव टू सी वेदर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग हियर और नॉट. मुझे यहाँ पे एंगल दे रखा है 45, ठीक है. दिस इज माई, इफ माई दिस 45 इज ग्रेटर देन माई क्रिटिकल एंगल, ठीक है. इफ दिस 45 डिग्री इज greater than my critical angle, then I'll say the light will not reflect here, it will go reflected inside this, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एंगल निकालते हैं. मेरे को म्यू दे रखा है तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया आपका, साइन इनवर्स 1/म्यू, ठीक है. म्यू कितना है 2, तो यहाँ से आपका साइन सी कितना आ जाएगा, साइन सी इज नथिंग बट 1/2 और सी कितना आ गया यहाँ से आपका 30 डिग्री. तो ना क्रिटिकल एंगल आपका 30 डिग्री है और यहाँ पे आपको 45 डिग्री दे रखा है. दैट मीन्स योर 45 डिग्री इज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल, दैट मीन्स एट दिस सरफेस यू विल बी हैविंग योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है.
नाउ विल फाइंड आउट कि एक्चुअली इस सरफेस के बाद वेयर विल बी द इमेज फॉर्म, ठीक है, बिकॉज इस सरफेस के बाद सो आफ्टर दिस सरफेस, ठीक है, आफ्टर दिस सरफेस द इमेज मस्ट बी फॉर्म समवेयर, ठीक है, द इमेज मस्ट बी फॉर्म यहाँ से कहीं से सॉरी इस वाले सरफेस पे निकालते हैं, नो विल फाइंड आउट कि आफ्टर दिस सरफेस, इस वाले सरफेस के बाद वेयर विल बी द इमेज फॉर्म व्हेन द लाइट इज कमिंग पैरेलल, ठीक है, तो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म, ठीक है, तो जहाँ पे इमेज बन रही होगी, ठीक है, विल सी के वेयर द इमेज विल बी फॉर्मिंग, ठीक है, फॉर दिस सरफेस, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, यू इज गिवन माइनस इन्फिनिटी, वी हैव टू फाइंड आउट एंड आर इज बिन गिवन में, डायरेक्शन ऑफ द लाइट में ही मेरे को दे रखा है, आर इज बिन गिवन टू मी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3, ठीक है, तो विल पुट द वैल्यूज हियर, दैट इज म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई दिस इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो हमारे को इमेज निकालनी है ना आफ्टर बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, फिर हमें बताना है इमेज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन और बाय द रिफ्लेक्शन, ठीक है, हमें बताना है तो रिफ्लेक्शन अगर मेरी वी होगा, वी इफ़ माई वी इज़ ग्रेटर देन, जहाँ पे इसकी इमेज बन रही होगी बिकॉज ऑफ दिस, इफ़ इट्स ग्रेटर देन 3 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, 3 से छोटा होगा तो अगर ये यहाँ पे इस तरीके से मिल गए यहाँ पे, ठीक है, देन आई विल से इट विल बी ओनली रिफ्लेक्शन, इमेज विल बी फॉर्म्ड ओनली बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन के साथ अगर ये यहाँ तक पहुँच गए होंगे, ठीक है, दैट मीन इट इज़ गोइंग टू फॉर्म बाय द इमेज इज़ गोइंग टू फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन, ठीक है। विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी है, ठीक है, म्यू 2 आपका क्या इतना है, दैट इज़ 2 और ये 1, ठीक है, म्यू 1 आपका 1 है, म्यू 2 आपका 2 है, यू पुट द वैल्यूज है, आपका u इज़ माइनस इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, तो इससे मेरा v आ रहा है 6, दैट मीन्स ये आपका 3 है, तो इमेज विल बी फॉर्म समवेयर है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही होगी बट यहाँ पे तो बनेगी नहीं बिकॉज यहाँ से लाइट आपकी इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी, दैट मीन्स ये यहाँ पे जो 3 बनना था, नाउ इट इज़ गोइंग टू फॉर्म समवेयर हेयर 3 रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, बिकॉज दिस एंगल विल बी सेम, तो सिमेट्रिकली इधर मेरा जो यहाँ पे मेरा 3 ये बनना था 3 के बाद, नाउ इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द इमेज समवेयर हेयर 3 के बाद मेरी यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ठीक है, तो अब ये 3 जो होगा दैट इज़ ऑन द सरफेस ऑन दिस स्फेयर ओनली, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड हेयर, ठीक है, यहाँ से ये जाएगी, ये गई, यहाँ से दिस गोइंग टू कम ये, ठीक है, यहाँ से ये आएगी एंड ये, ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द इमेज, ठीक है, 3 पे ही ये इमेज बना देंगे यहाँ पे, सो योर इमेज फॉर्मेशन फाइनली द इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम हेयर, ठीक है, एंड इफ यू ट्रेस द रेज एक्चुअली इट शुड हैव फॉर्म्ड ऑन द कंप्लीट स्फेयर, इधर की साइड में ही बननी चाहिए थी मेरी, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दैट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी, दिस इज आवर इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज, राइट। विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा एक पेपर वेट रखा गया है इस तरीके से, ठीक है, माई पेपर वेट इज़ बिन केप्ट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फेयर, जिसका रेडियस मेरा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, इट्स बिन यूज टू होल्ड द प्रिंटेड पेपर ऑन द प्लेन सरफेस डाउन एंड ऑब्जर्वर लुक एट द पेज वर्टिकली, यहाँ से मेरा ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, माई ऑब्जर्वर इज बिन सीइंग फ्रॉम एयर एट ए हाइट अबव द पेज, विल द प्रिंटेड लेटर नियर द सेंटर, ठीक है, यहाँ पे अगर जो मेरे प्रिंटेड लेटर है नियर द सेंटर अपीयर एट वॉट हाइट, ठीक है, एट वॉट हाइट अबव द पेज, ठीक है, यहाँ से कितना ऊपर मेरे प्रिंटेड लेटर दिखेंगे ऑब्जर्वर को, इफ़ द ऑब्जर्वर इज सीइंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से अगर मेरा ऑब्जर्वर देख रहा है तो इसको यहाँ से ये वाला अगर ये लेटर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ से कितना ऊपर दिखेगा इसको, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हेयर। सेकंड में जब मेरा इस तरीके से मेरा रखा हुआ है, ठीक है, तब उस केस में निकालना है, अगर मेरा इस तरीके से रखा हुआ है मेरा पेपर वेट तो इस केस में मेरे को निकालना है वेदर देयर विल बी शिफ्टिंग और नॉट, ठीक है। सो अगेन हमारा हेयर विल बी द हेयर वी आर हैविंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो लाइट इज बिन ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, तो विल अप्लाई यार इस पे इंटरफेस पे निकालते हैं हम अपना, ठीक है, सो इस वाले इंटरफेस पे वी विल फाइंड आउट के व्हाट विल हैपन, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे जाएगी, ठीक है, सो विल अप्लाई द फॉर्मूला म्यू 2 ओवर वी माइनस म्यू 1 ओवर यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 ओवर आर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो v होगा दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड, अब आपका लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन तो u जो होगा दैट विल बी -3, ठीक है, u इज़ योर -3 एंड हेयर म्यू 2 इज़ योर 1 एंड म्यू 1 इज़ योर 1.5, ठीक है, तो 1.5 डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन इन दिस डायरेक्शन में मैं मेजर कर रहा हूँ 3 बट द लाइट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन इट विल कम -3, ठीक है, तो आपका जो v आएगा इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा -3, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका जो v बन रहा है यहाँ से इसी पॉइंट पे बन रहा है, तो देर इज़ नो शिफ्टिंग, ठीक है, तो आपके जो लेटर जहाँ पे होगा सपोज दिस लेटर इज o हेयर, तो यहाँ पे ये आपको o सेम
डेप्थ पे ही मिलेगा, ऐसा नहीं है इसकी इट इज़ गोइंग टू गेट रेज्ड अप, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी एट सेम हाइट 3 पे ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, अगर इस तरीके से आपका पेपर वेट रखा हुआ है, नाउ द पेपर वेट इज लाइक दिस, तो अगेन द लेटर वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम हियर, बट नाउ आपका जो होगा ये वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और ये वाला सरफेस का जो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नाउ इन्फिनिटी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारा था रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी दिस, नाउ इट विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। अगेन विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला 1/v माइनस यही हमारा -3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट तो सेम डिस्टेंस पे ही है हमारा, ठीक है। नो ओनली द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गोइंग टू गेट चेंज, इट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारा v कम्स आउट टू बी इक्वल टू -2। अब जो आ रहा है ये मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा o, तो नाउ शिफ्ट कितना हो गया, दैट इज 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, राइट, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू आवर कॉन्सेप्ट ऑफ लेंसेज, ठीक है। सो लेंसेज को दो तरीके होते हैं हमारे देखने के, वन वे इज़ टू ऑब्जर्व इट कि लेंस इज़ नथिंग बट, ठीक है, दो तरीके, इट इज़ नथिंग बट ए पार्ट ऑफ योर लार्जर स्फीयर, ठीक है। तो पार्ट ऑफ योर लार्जर स्फीयर ये आपका स्फीयर है, ठीक है, तो इसमें से ये वाला पार्ट आपने निकाल दिया, ये वाला पार्ट निकाल दिया, सो दिस गोइंग टू फॉर्म वन लेंस, ठीक है। तो हम लेंस को डिफाइन करते हैं जो इसका सेंटर पार्ट है, इसका कितना जो ज़्यादा थिक होता है वी कॉल इट अ कॉन्वेक्स लेंस, और जो पतला होता है अगर मेरा सेंटर पार्ट वी कॉल इट अ कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो अनदर वे हेयर इन दोनों का इंटरसेक्ट होकर जो निकल रहा है, दूसरा क्या है मेरा, दिस वे वी हैव वन स्फीयर इज दिस, अनदर स्फीयर इज दिस, एंड वी टेक आउट दिस पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट ले लिया हमने ये वाले स्फीयर का। नाउ ये जो सेंटर है इसका, इफ इट्स थिन वी कॉल इट अ कॉन्केव लेंस, बिकॉज ये थिन जब होगा वी विल सी इन द रे डायग्राम इट इज गोइंग टू डाइवर्ज, ठीक है। इन दिस केस my rays are going to diverge and in this case my rays are going to converge, ठीक है। and why it is happening, because आपके स्फीयर पे कंटिन्यूसली आपका नॉर्मल इज चेंजिंग, तो स्फीयर के हर एक पॉइंट की जो बेंडिंग कैपेबिलिटी होगी विल बी, जो बेंडिंग एंगल होगा विल बी डिफरेंट, ठीक है, जो ग्रेडियंट एंगल होगा, सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो बेंडिंग एंगल विल बी डिफरेंट, मोर बेंडिंग विल बी हैपनिंग, यहाँ पे जो बेंडिंग होगा और थोड़ा कम होगा, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं है, ठीक है। सो द ग्रेडियंट ऑफ दिस बेंडिंग एंगल इज बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल सर्फेस, और स्फेरिकल सर्फेस हमारे लेने के दो तरीके हैं, वन वे इज लाइक दिस, अनदर वे इज लाइक दिस, ठीक है। और एक और तरीका होता है हमारे को कि आप कॉन्वेक्स लेंस को या कॉन्केव लेंस को टू थिंक इट इन दिस वे कि इट इज़ लाइक अ प्रिज्म विच इज़ बीन स्टैक्ड ओवर, ठीक है। इस तरीके से मेरे प्रिज्म रखे हुए हैं, ठीक है, इट इज़ लाइक अ प्रिज्म विच इज़ बीन स्टैक्ड ओवर, और धीरे धीरे वो उसका जो एंगल है दैट इज़ बीन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप यू कैन ऑब्जर्व कि प्रिज्म इज़ लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से आपके प्रिज्म रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने मल्टीपल प्रिज्म से एक ये बना लिया, ठीक है। सेम वे यहाँ पे आपने इस तरीके से प्रिज्म रखे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से प्रिज्म रखा हुआ आपने, ठीक है। तो दैट इज़ अनदर वे टू थिंक इट ओवर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द प्रिज्म एंड इन टर्म्स ऑफ द स्फीयर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप कि आपका जितना फैट सरफेस है, ठीक है, जितना ये सेंटर फैट है आपका, ठीक है, अगर आपके साइड से सेंटर ज़्यादा फैट है देन इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, और वी टेक मोस्ट ऑफ द केसेस हम रे डायग्राम में अभी देखेंगे कि अगर आपका सेंटर अगर ये होता है आपका तो इट विल बी कन्वर्जिंग, ठीक है, इट विल बी कन्वर्जिंग। और आपका सेंटर थिन है फ्रॉम द एजेस, ठीक है, देन इट विल बी डाइवर्जिंग वन, ठीक है, राइट। नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ थिन लेंस, ठीक है। तो थिन लेंस इसलिए पढ़ रहे हैं हम बिकॉज वी वांट टू इग्नोर जो हमारी लाइट बीच में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वी वांट टू इग्नोर दैट, वी आर नॉट कंसिडरिंग जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो बहुत कम, उसकी ये जो अंदर के है दे विल, हम जो डेविएशन होगा अंदर, बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा पहले सरफेस पे जिसकी वजह से लाइट विल डेविएट, ठीक है, जो लाइट का डेविएशन होगा यहाँ पे, सपोज फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर लाइट मेरी जा रही है और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल अगर बेंड हो रही है, तो दिस बेंडिंग वी वांट टू अवॉइड, और वो कब कर सकते हैं, व्हेन वी कंसिडर द थिन लेंस, ठीक है, वी कैन कंसिडर कि यहाँ से लाइट पैरेलल ट्रैवल कर रही है, ठीक है, when we can ignore the journey of the light inside the glass, ठीक है, because we are considering the we are taking the assumption of thin lens, ठीक है। अब होता क्या थिन लेंस, हमने देख लिया इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विद टू रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, एटलीस्ट वन इज कर्व्ड, ठीक है। तो इन दोनों में से ये नहीं है कि आपके दोनों कर्व होने चाहिए, एटलीस्ट वन इज कर्व, जैसे यहाँ पे वन कर्व है तो यहाँ पे वन फ्लैट है, वन कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन देखोगे आपका जो बीच का पोर्शन है दैट इज़ फैट, देन योर एजेस, देन इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, बट वी कॉल इट अ प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक है, बिकॉज प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक है। सेम वे अगर मैं इसको देखूँ तो हेयर इट इज़ अ कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है, ठीक है। इसका जो नेचर होगा, फाइनल नेचर विल बी कॉन्वेक्स ओनली, बिकॉज यहाँ पे इसका जो सेंटर पोर्शन है इट इज़ फैट, ठीक है। सो इसका जो फाइनल नेचर होगा इट विल बी अ कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये वाला पॉइंट हम लोग देख रहे थे कि दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने चाहिए, 1, 2, जिसमें से एक जो होना चाहिए कर्व्ड होना चाहिए, दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ अ थिन लेंस, ठीक है। आपके दोनों कर्व्ड होंगे, ठीक है, एक भी कर्व से भी थिन लेंस हो जाएगा, ठीक है।
सो यहाँ पे थिन लेंस की जो अजम्पशन है ये भी है कि वी एज्यूम दैट द लाइट एंटर्स द लेंस, इट बेंड्स एंड व्हेन इट एग्जिट्स इट बेंड अगेन बट इट डज नॉट मूव अप एंड डाउन इनसाइड द ग्लास। ठीक है, हमने देखा ना थिन लेंस हम इसलिए कर रहे हैं कि इट शुड नॉट मूव एनीथिंग अप एंड डाउन इनसाइड द ग्लास। ये ऐसे नहीं जानी चाहिए, ऐसे नहीं जानी चाहिए। तो लाइट शुड वी कंसिडर इट इज़, यहाँ पे बेंडिंग होनी चाहिए लाइट की। ठीक है, बेंडिंग हो गई और यहाँ से बेंडिंग हो गई बस। ठीक है, सो वी आर नॉट, ये वी आर टेकिंग के लाइट यहाँ से गई और ये बेंड हो गई। ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग के लाइट अंदर भी बेंड कर रही है। ठीक है, so light does not move up and down inside the glass, that's why we are taking the thin lens assumption. ठीक है, so refractive index of your glass should be different from the surrounding. ठीक है, that is another condition, otherwise अगर same surrounding की होगी तो there will not be any bending. ठीक है, because reflection के लिए आपको different रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहिए। अगर यहाँ पे अगर इसका भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और आपका बाहर का भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम हो गया देन लाइट विल नॉट बेंड, लाइट विल जस्ट ट्रैवल पैरेलली। ठीक है, ना जो कन्वर्जेंट लेंस होते हैं वी कॉल इट, कन्वर्जेंट मीन्स के लाइट को दे आर गोइंग टू फोकस एट वन पॉइंट। ठीक है, दे आर गोइंग टू कन्वर्ज। ठीक है, दोज लेंसेज वी कॉल द कॉन्वेक्स लेंस, और जो डाइवर्ज करते हैं वी कॉल इट अ डाइवर्जेंट कॉन्केव लेंस। ठीक है, कन्वर्जेंट जो होते हैं जो आपकी कन्वर्जेंट लेंस जो होते हैं, जो आपकी रेज पैरेलल आती हैं, ठीक है, विच इज़ नियर टू द पेरेक्सियल। ठीक है, दैट पेरेक्सियल कंडीशन ऑल्सो वी आर टेकिंग नियर टू द पेरेक्सियल, they all converge at one point which we call the principal focus. ठीक है, they all converge at one point. ठीक है, so that is what the convergent lens and इसकी जो कंडीशन होती है दैट सेंटर पे they should be thick. ठीक है, they should be thick इसलिए होनी चाहिए so that you'll get a gradient bending. ठीक है, gradient bending आपको बेंडिंग मैक्सिमम यहाँ पे होगी, फिर धीरे 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 सेंटर तक आके आपकी बेंडिंग कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट होता है, यहाँ पे द अपोजिट थिंग इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन फॉर द डाइवर्जेंट आपका कॉन्केव लेंस हो गया, डाइवर्ज करता है योर पैरेलल पेरेक्सियल रेज। यहाँ पे जो पैरेलल पेरेक्सियल रेज आ रही होंगी इट्स गोइंग टू डाइवर्ज देम। ठीक है, इट्स गोइंग टू डाइवर्ज देम। ठीक है, इट्स गोइंग टू डाइवर्ज देम, और यहाँ पे क्या करेगी पैरेलल पेरेक्सियल रेज रहेगी, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ज देम टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये कन्वर्ज कर देगा और यहाँ से अगर हम देखें इट इज़ गोइंग टू डाइवर्ज इट बैक। ठीक है, इसको डाइवर्ज कर देगा। सेंटर यहाँ पे हमारा थिन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये बाई कॉन्वेक्स क्या होगा, आपके दोनों ये रेडियस इधर का R1 हो गया, इधर का रेडियस R2 हो गया। ठीक है, सो दैट इज़ बाई कॉन्वेक्स। इक्यू कॉन्वेक्स जब दोनों मेरे रेडियस बराबर हो गए। ठीक है, सो इनका ये वाला जो बताता है इट इज़ टेलिंग द नेचर ऑफ द लेंस। ठीक है, सो ये वाला हो गया आपका दिस वन इज़ योर इक्यू कॉन्वेक्स जब आपके दोनों के रेडियस बराबर हैं। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स जब आपका फर्स्ट वाला प्लेनर है एंड द सेकेंड वन इज़ योर फर्स्ट प्लेनर, इसको प्लेनर है बट द नेचर इज़ माई कॉन्वेक्स। ठीक है, सेकेंड इज़ माई कॉन्केवो convex. ठीक है, here the nature is convex but it is like a cave it is forming, it is like this, it is a cave it is forming, so it is a concavo convex. ठीक है, तो concavo convex but the nature is convex here. ठीक है, nature is converging here. ठीक है, बाई कॉन्केव में अगेन इट इज़ सेंटर मेरा थिन होना चाहिए बट ये दोनों के रेडियस अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्यू कॉन्केव में दोनों के रेडियस बराबर हैं, प्लेनो कॉन्केव में यू आर हैविंग वन सरफेस प्लेनर, कॉन्केवो कॉन्केव में यू हैव हैविंग वन सरफेस एज ये आपका इस तरीके से बनेगा ये ऐसे। ठीक है, तो ये वाला सरफेस आपका एक कॉन्केव सरफेस है, सॉरी एक कॉन्वेक्स सरफेस है, दिस सरफेस इज योर कॉन्वेक्स सरफेस है बट यहाँ पे जो नेचर है मेरे इसका डाइवर्जेंट है, तो दैट्स वाई इट इज़ ए कॉन्केव लेंस। ठीक है, ठीक है, सो दीज आर द डाइवर्जेंट लेंस, और इसको देखने का जितने भी यहाँ से पतले लेंस हैं वी कॉल इट अ थिन लेंस, एंड यहाँ पे जितने भी मोटे हैं बीच में वी कॉल इट अ थिक, एट द सेंटर वी कॉल इट अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, राइट नाउ एक ये हमने देखा था अभी हमने लास्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे थे। तो अनदर वे इज़ टू फॉर्म द लेंस इज़ थ्रू द स्टैकिंग ऑफ योर प्रिज्म्स। ठीक है, इस तरीके से प्रिज्म्स की स्टैकिंग के साथ भी वी कैन विजुलाइज इट। ठीक है, ठीक है, नाउ आपका जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आपका अपर्चर कितना बड़ा है। ठीक है, द साइज ऑफ दिस अपर्चर का स्क्वायर। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ योर लाइट दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर अपर्चर। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा अपर्चर इतना वाला अपर्चर ब्लैकन कर दिया तो नाउ योर इंटेंसिटी इज़ गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर। ठीक है, आपने कोई शिफ्ट नहीं किया बट आपने यहाँ पे कट कर दिया या आपने ब्लैकन कर दिया इसको, देन योर अपर्चर विल बी लेस एंड योर इंटेंसिटी ओनली इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं आपका और डिफरेंट नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो हमारा ये
कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज योर कॉन्केव लेंस, एंड द लाइट पास, और जो लाइट पासिंग थ्रू इसके सेंटर से जाती है एंड दैट गोज अनडेविएटेड, ठीक है। द लाइट पासिंग थ्रू दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, और जो भी लाइट आपकी यहाँ से जाएगी दैट इज गोइंग टू गो अनडेविएटेड, ठीक है, द रे पासिस अनडेविएटेड, ठीक है। सो दिस CC1 इज व्हाट वी कॉल द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द लाइट पासिंग थ्रू योर optical axis, optical center is not going to get deviated, ठीक है, यहाँ पे भी जाएगी, it is going to not going to get, and it is undeviated light होगी जो optical center से जा रही होगी, ठीक है, right। Now we are talking about the principal focus. Now the lenses are having two focus, ठीक है, दो फोकस हमारे, and we are taking principal focus, that means considering the पैरेक्सियल लाइट्स के पैरेक्सियल रेज के ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट फोकस जो होता है हमारा, दैट इज व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी, ठीक है। सो इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी, लाइट इज गेटिंग पैरेलल आफ्टर दिस, ठीक है, एंड फॉर द कॉन्केव लेंस, ठीक है, सो लाइट इज कमिंग, सो योर ऑब्जेक्ट इज हेयर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, हेयर द ऑब्जेक्ट इज रियल, और उसके बाद लाइट इज गोइंग पैरेलल, ठीक है, इन द डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट फोकस, दिस इज योर फर्स्ट फोकस, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल एक्सिस एंड योर इमेज इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट फोकस। सेकेंड फोकस क्या होगा, सेकेंड फोकस व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल एक्सिस विच यू कॉल द सेकेंड फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो वी टेक दिस एज अ फोकस ऑफ योर लेंस, ठीक है, इस वाले को सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को वी टेक इट अ फोकस ऑफ अ लेंस। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होगा, दिस इज आवर फोकस, ठीक है, लाइट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, तो दिस फोकस विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्केव लेंस, ठीक है, एंड हेयर फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, this is positive for convex lens, ठीक है, and for the concave lens it will be negative because light is diverging from here, ठीक है, and light is diverging from here, and here if we have to extend it, and seems like light is coming from this point, ठीक है। So this is what we call the principal focus of our concave lens, and if you see light is traveling in this direction and we are measuring from here, so your focus for the focus will be negative, but आपका जो मैग्नीट्यूड होगा विल बी सेम, ठीक है। इट डिपेंड्स, आपके कर्वेचर पे डिपेंड करता है, बट इट कैन नॉट बी द सेम, इट डिपेंड्स अपॉन द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करेगा, आपके म्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बट हेयर वी आर टेकिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के बराबर लेके चल रहे हैं हम ये लोग, एंड योर म्यू इज ऑल्सो सेम, ठीक है। तो देन इन दैट केस आपके दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ जाएंगे, बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। तो दिस इज पॉजिटिव फॉर योर कॉन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव फॉर योर कॉन्केव लेंस, ठीक है। we will see the our मेजर कॉन्सेप्ट विच इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, जिससे हमारे को फोकल लेंथ पता लगती है अपने लेंसेज की, ठीक है। कुछ नहीं करना हमारे को, अपना जो हमने अभी तक अपना स्फेरिकल सरफेसेस के ऊपर जो हमने रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर बोथ द सरफेसेस एंड देन वी आर गोइंग टू डिराइव इट, ठीक है। सो लेंस मेकर फॉर्मूला आपको क्या बताता है, इट इज़ नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन योर फोकल लेंथ, हाउ योर फोकल लेंथ वेरीज विद योर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड योर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस, ठीक है। दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है एंड योर म्यू पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ योर मटेरियल। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर लेंस मेकर और फोकल लेंथ फॉलोइंग अजम्पशन दैट वी टेक इट, कि आपका लेंस थिन होना चाहिए, ठीक है। थिन का मतलब हो गया, अभी हमने यहाँ पे काफ़ी मोटा दिखा रखा है, थिन होना चाहिए ताकि आपका ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है O से P, दैट शुड बी इक्वल टू O से C, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस शुड बी नेग्लेजिबल, ठीक है। ये डिस्टेंस P1C शुड बी नेग्लेजिबल, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर होगा, वी टेक इट सेम। अपर्चर आपका स्मॉल होना चाहिए, सो दैट विल कंसिडर ओनली द पैरेक्सियल रेज, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट शुड बी जो हम लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड योर इंसिडेंट रे, ठीक है। दिस इंसिडेंट रे मेक्स अ स्मॉल एंगल, ठीक है। दिस इंसिडेंट रे विल मेकिंग अ स्मॉल एंगल, ठीक है। दिस इंसिडेंट इन द रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग एन स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, राइट। सो दिस वी आर नॉट टेकिंग ये फार नहीं ले रहे, वी आर टेकिंग दिस, दे आर मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल, दिस इंसिडेंट एक्सिस के साथ दे आर टेकिंग, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये जो एंगल है, वी आर टेकिंग वेरी स्मॉल एंगल बिकॉज वी हैव टू टेक दिस एंगल वेरी स्मॉल टू गेट द टू फाइंड आउट आवर
टू यूज़ द स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो ये वाला एंगल विल बी वी आर टेकिंग वेरी स्मॉल, ठीक है। Now we'll see, we'll apply our refraction formula, that is mu 2 over v minus mu 1 over u is equal to mu 2 minus mu 1 over r, ठीक है। we just apply this formula, ठीक है। हम दोनों सरफेस पे लगाते हैं, पहले वाले सरफेस पे लगाया हमने mu 2 over v v1, ठीक है। तो इसका जो इमेज आएगी दैट विल इट इज़ फॉर्मिंग सम v1 इमेज इट विल बी फॉर्मिंग, ठीक है। तो mu 2 over v1 माइनस वी आर नॉट पुटिंग एनी साइन हेयर, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू डाल रहे हैं बिकॉज वी नो ओनली ये पता है मेरे को ये डेंसर है, ये पता है मेरे को रेयर है, एंड वी जस्ट नो द रेडियस ओनली, वी डोंट नो द साइन एंड ऑल, ठीक है। यू और वी के हमारे को नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से हम mu 2 over v1 माइनस mu 1 over u इज इक्वल टू mu 2 माइनस mu 1 over r, ठीक है। इस वाले का सेकेंड वाले का जो होगा, ये वाला जो होगा इट विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट टू इट, ठीक है। तो इट विल बी यहाँ पे जो फाइनल इमेज आएगी दैट इज mu 1 by v माइनस mu 2 by v1, ठीक है। बिकॉज वी आर टेकिंग दिस जो v1 होगा इट विल बी एन ऑब्जेक्ट, u होगा इसके लिए इज इक्वल टू, अब यहाँ से लाइट पहले यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है दैट इज़ mu 1 से mu 2, अब क्या कर रही है mu 2 से mu 1, mu 2 से mu 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा mu 1 माइनस mu 2 ओवर r2, ठीक है। ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, r2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको माइनस साइन बाहर ले लिया, तो सो राइट इट डाउन mu 2 माइनस mu 1, ठीक है। सो दीज टू इक्वेशन विल कम नाउ in these two equation हमारे mu 1 by u and this mu 1 by mu 2 by v1, ठीक है, divided by and minus mu 2 by v1 will get cancelled, ठीक है। ये दोनों हमारी these both if we are going to add both of them, तो these two things is going to get cancelled, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं अब mu 1 by v minus mu 1 by u is equal to mu 2 minus mu 1 by r1 minus 1 by r1 माइनस 1 by r2, ठीक है। ये आ गया हमारा, और यहाँ से मैंने mu 1 कॉमन निकाल के इसको मैं mu 1 को नीचे ले गया, ठीक है। तो नाउ इट विल बी 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू दिस, ये हो गया मेरा mu रिलेटिव दैट इज mu ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। mu रिलेटिव हो गया। नाउ इफ योर mu 1 इज 1 तो इट विल कम आउट टू बी mu ओनली, सो mu कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ mu 2 ओवर mu 1, ठीक है, mu ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माई लेंस डिवाइडेड बाय मेरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu 2 और mu 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू सो 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू mu 2 और mu 1 माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2, ठीक है। नाउ वी पुट, इसको मैंने mu लिख दिया, एंड इफ़ यू पुट, अगर u की वैल्यू आप इन्फिनिटी डाल दो तो v क्या होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस में, दैट इज़ योर फोकस, ठीक है। तो वी हैव पुट इट, तो ये वाली जो वैल्यू आ गई आपकी, सो इसको हमने क्या, u की वैल्यू को मैंने डाल दिया इन्फिनिटी, v कम्स आउट टू इक्वल टू 1 by f, ठीक है। वी पुट दिस वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई 1 by f इज इक्वल टू, ये आपका मैंने लिख दिया mu माइनस 1 by r1, ये सेम रहेगा, ठीक है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज़ योर लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। हेयर फोकल लेंथ आ गई हमारे को जो निकालनी थी, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, mu आ गया आपका दैट इज़ mu 2 और mu 1, रिलेटिव इंडेक्स आ गया -1 डिवाइड बाई ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, ठीक है। तो हेयर दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला विच विल गिव यू द फोकल लेंथ, ठीक है। नाउ इफ यू सी दिस थिंग एंड दिस थिंग्स आर इक्वल, सो आई कैन से 1 by f इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज योर लेंस फॉर्मूला आ गया 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u, ठीक है। सो दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला वेयर यू आर गेटिंग द फोकल लेंथ, एंड दिस इज योर लेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज योर लेंस फॉर्मूला, राइट। ठीक है, अभी हमारा वी आर हैविंग 2-3 मोर कॉन्सेप्ट्स टू गेट इनटू। वन इज़ अ पावर ऑफ द लेंस। इमेज फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट वी विल सी के इमेज पे जो फॉर्मेशन में हम रेज लेते हैं, किस कौन कौन सी मेजर रेज लेते हैं, और एक लीनियर मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लिया हमने लेंस मेकर फॉर्मूला। विल सी वन क्वेश्चन ऑन टू इट। तो इस क्वेश्चन में हमारे को क्या कह रहा है कि मेरे पास दो स्फेरिकल सर्फेसेस दे रखे हैं, जिसका मेरा रेडियस r1 है और दूसरे का रेडियस r2 है। मैं हाउ मेनी वेज दिस surfaces may be arranged to form a different lenses if all the lens are made of the glass। अब सबका मेरे को म्यू ये दे रखा है, और तो आपका म्यू 2 और म्यू 1 जो होगा दैट इज़ योर म्यू ओनली, एंड म्यू इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1.5 बिकॉज बाहर आपका ये 1 है, तो इट विल बी 1.5, ठीक है। नाउ इसको मैं किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? सो आई कैन अरेंज दिस इन फर्स्ट इज कि आप ये r1 ऐसे ले लो, ठीक है, एंड r2 भी ऐसे ले लो, ठीक है। सेकेंड केस में ले सकता हूँ। सो जैसे हमने लिया r1 मैंने लिया पॉजिटिव एंड r2 नेगेटिव लिया, तो दैट मीन्स r1 मैंने ये लिया और ये मैंने r2 ले लिया। r2 मेरा नेगेटिव हो गया, r1 मेरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस मैंने ये ले लिया। सेकेंड मैंने क्या किया, आई हैव टेकन r1 दिस
एंड R2 ऑल्सो दिस नेगेटिव, ठीक है, ये मैंने दोनों नेगेटिव ले लिए, ठीक है, दिस इज माई सेकेंड केस, ये मेरा सेकेंड केस हो गया, ठीक है, दिस इज आर सेकेंड केस, राइट, कि योर R1 इज नेगेटिव विद दिस साइड एंड योर R2 इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। थर्ड केस क्या लिया मैंने, R1 पॉजिटिव एंड योर दिस R2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो योर R1 इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड योर R2 इज पॉजिटिव, ठीक है, तो थर्ड आपका ये वाला लेंस बन गया, ठीक है। फोर्थ लेंस किस तरीके से बनेगा, योर R1 नेगेटिव एंड योर दिस वन एंड योर R2 पॉजिटिव, तो ये वाला लेंस बन गया इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला लेंस बन गया आपका, ये आपका 60 हो गया और ये वाला आपका 30 हो गया, ठीक है, तो ये 4 लेंस बनेंगे हमारे। विल फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी लेंस। तो फोकल लेंथ हमारे को पता है, वी आर हैविंग फोकल लेंथ विल बी म्यू माइनस 1 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, हियर R इज डिफरेंट, वी हैव टू पुट इट विद द साइंस, ठीक है, तो 1 बाय एफ इजिकल टू म्यू माइनस 1, म्यू हमारे को दे रखा 1.5, विल जस्ट पुट द वैल्यू। तो पहली फोकल लेंथ आ गई, व्हेन योर रेडियस इज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है, तो पहला वाला केस हमारा ये आ गया, दिस एंड दिस एंड सो ये और ये इस तरीके से, ठीक है, ये रेडियस होकर विच इसका लार्ज होगा, तो ये वाला आ गया हमारा, ठीक है, तो पहला वाला लेंस हमारा ये आ गया, ठीक है। वी पुट द वैल्यूज हियर 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, तो कम्स आउट टू बी कन्वर्जिंग आया हमारा, बिकॉज फोकल लेंथ इज 40, ठीक है, हमने देखा था पॉजिटिव जब भी फोकल लेंथ होगी इट विल बी ए कॉन्वेक्स लेंस एंड इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस आ गया, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने अब इसकी वैल्यू माइनस कर दी और ये मैंने सेम मेंटेन रखा, तो ये मेरा ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, दिस इज माई लेंस नाउ, ठीक है, दिस इज माई लेंस नाउ, ये, ठीक है, तो विल पुट द वैल्यू यहाँ पे म्यू माइनस 1 माइनस दिस हमारा यहाँ पे क्या आया -1/120, तो मेरी फोकल लेंथ आ गई -120, इट कम्स आउट टू बी कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग, ठीक है, देखने से भी पता लग रहा है कॉनकेव ही हमारा, बिकॉज सेंटर पे हमारा थिन हो रहा है। थर्ड है मेरा दिस R1 पॉजिटिव एंड R2 हमारा R2 इज नेगेटिव मीन्स कि इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से बन रहा होगा, दिस इज माई लेंस, ठीक है, तो इट इज़ अगेन यू कैन सी इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, तो हमारा पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो विल पुट द वैल्यूज हियर 1 बाय एफ म्यू माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू डाल दी, यहाँ से हमारी फोकल लेंथ आ गई 120 एंड पुटिंग द वैल्यू हमने देखा 120 पॉजिटिव है और इट इज़ ए कन्वर्जिंग लेंस। लास्ट में हमारा दिस, सो लास्ट में दिस इज नेगेटिव आपका, सो ये बनेगा आपका the last one will be your R1 is negative and your R2 is positive, ठीक है। so यहाँ पे again we are going to put the values here, so here we put 1 by f is equal to mu minus 1, we put the values here, हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा -1 by 40, तो this is focal length नेगेटिव आ रही है, it is diverging, ठीक है। so that 4 ways you can make a lens from the two spherical surfaces of different radius, ठीक है। नाउ पावर देखते हैं, पावर हमने देखी थी इन आवर मिरर केस ऑल्सो, तो पावर इज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ज द पैरेलल बीम, ठीक है, तो अगर आपके पास ये लेंस रखा हुआ है, ठीक है, वन लेंस इज दिस अनदर लेंस इज दिस, तो यहाँ पे इफ़ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो ये बताता है कितनी दूर जाके इसको फोकस करेगा, ठीक है, कितनी दूर जाके इसको फोकस करेगा, तो ये मतलब बहुत लाइटली बेंड कर रहा है। अनदर वन इज अगर मैं ये वाली लाइट लेके आऊँ यहाँ से एंड इट्स गोइंग टू बेंड लाइक दिस, ठीक है, तो ये इसको स्ट्रांगली बेंड कर रहा है, ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस लार्जर कन्वर्जेंस, ठीक है, बहुत जल्दी इसको बेंड कर रहा है और ये स्लाइटली धीरे धीरे बेंड कर रहा है, तो दैट मीन्स इसकी पावर लो है, पावर यहाँ पे लो है बिकॉज यहाँ पे क्या है फोकल लेंथ हाई है, ठीक है, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। सेकेंड इज योर यहाँ पे फोकल लेंथ इज स्मॉल बट एंड योर पावर इज हाई, ठीक है, सो इट इज़ बेंडिंग शार्पली, ठीक है, सो यहाँ पे पावर को लिखते हैं हम एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कन्वर्जेंस ऑफ द पैरेलल बीम, और पावर को हम लिखते हैं मैथमेटिकली 1 बाय एफ, ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1 बाय एफ, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है डायप्टर टी एंड स्मॉल फोकल लेंथ मीन्स योर लास्ट कन्वर्जिंग इफेक्ट, ठीक है, जो कि हमने देखा यहाँ पे अगर आपकी छोटी फोकल लेंथ है सो पैरेलल आ रही है तो दिस इज योर स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है, सो दिस फोकल लेंथ इज क्वाइट स्मॉल, ठीक है, सो इट इज़ लार्ज कन्वर्जिंग इफेक्ट। नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग मोस्टली दो से हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी बिकॉज वी विल सी द इंटरसेक्शन ऑफ दोज टू रेज, बट 3 मेजर जो हम लेते हैं, वन इज द रे गोइंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये वाली रे, ठीक है, विच इज माई ऑप्टिकल सेंटर, इट विल गो अनडेविएटेड, कोई इसमें बेंडिंग नहीं आएगी, अनडेविएटेड जाएगी। सेकेंड रे लेते हैं फर्स्ट फोकस से जो हमारी जारी होती है, दैट इज माई पैरेलल, सो फर्स्ट फोकस से जो जारी होगी, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फर्स्ट फोकस ये मेरा फोकस है, तो फर्स्ट फोकस से जो जारी होगी इसके बाद ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, तो रे फ्रॉम द फर्स्ट फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है,
सेकेंड जो होगी आपकी दैट इज रे पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास, सो इनिशियली आपकी रे पैरेलल आ रही है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू योर सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो आपका पहला प्रिंसिपल एक्सिस ये है, सेकंड ये है, तो एक रे जाएगी जो पहले प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, सेकंड रे जो पैरेलल आ रही होगी दैट विल बी बेंडिंग टूवर्ड योर सेकंड फोकस, ठीक है। सो इन तीनों रे से यू कुड एबल टू ड्रॉ ऑल योर रे डायग्राम, ठीक है। अगेन हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी नथिंग बट योर इमेज फॉर द लेंस, अगर हम देखें तो इट इज़ नथिंग बट आपका क्या होता है, हाइट ऑफ योर इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ योर ऑब्जेक्ट, दैट इज साइज ऑफ योर इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर दिस इज़ माई लेंस, ठीक है, तो अगर इसका अभी हमने देखा नहीं अभी तक रे डायग्राम, बट हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, इसी के बेसिस पे बनाते हैं। तो दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक रे पैरेलल जाएगी, इट इज़ गोइंग टू पास थ्रू सेकंड फोकस, ठीक है। सेकंड फोकस से गई यहाँ से, ठीक है। सेकंड रे इससे जो अनडिविटेड जाएगी, ठीक है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट, दिस इज़ योर इमेज, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इसकी हाइट डिवाइड बाय इसकी हाइट, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी आपकी ए डैश बी डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। एंड दैट वी कैन अप्लाई this we know, this is nothing but your v divided by u, ठीक है, that we have already seen. आपको थीटा लेके you can do and you can little angle approximation से we can see this, ठीक है। so this will be your that will be equal to ca dash divided by this, ठीक है। तो now your image जो है if you see in this इस वाले में देखें तो ये आपकी इमेज क्या नेगेटिव है, तो माइनस आई डाल दिया मैंने डिवाइड बाय ओ, और हेयर योर u इज़ नेगेटिव, ठीक है। इस वाले में अगर आपका देखें तो ऑब्जेक्ट इज़ नेगेटिव तो माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी इमेज आएगी, मैग्नीफिकेशन आएगी, दैट इज इक्वल टू v बाई यू, ठीक है। सो दैट इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ योर लेंस, ठीक है। हमने मिरर में क्या देखी थी, माइनस वी बाई यू होती थी, और यहाँ पे आपकी जो लेंसेस में है मैग्नीफिकेशन इज़ नथिंग बट v बाई यू, ठीक है, v बाई यू, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीफिकेशन ये हमारा v और u में हो गई, और f और v में चाहिए तो मैग्नीफिकेशन विल बी f माइनस वी बाई एफ, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीफिकेशन अगर आपको u में चाहिए तो f डिवाइडेड बाई f प्लस यू, ठीक है। अगर u और f में चाहिए, u और v में चाहिए, ठीक है। सेम वे अगर हम कन्वर्जिंग लेंस का देखें तो दिस इज़ योर डाइवर्जिंग लेंस का देखें तो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, पैरेलल जाएगी, डाइवर्ज होगी, तो if we extend it from the back it is coming from here, ठीक है। another ray which will go from the optical center undeviated, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें ये दो रे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बट एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग आफ्टर द सरफेस, बट वी हैव टू एक्सटेंड इट बैक, सो इट इज़ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड हेयर इट विल बी अ रियल ऑब्जेक्ट बिकॉज हमारी रियल रेस इट इज़ इंटरसेक्टिंग, ठीक है। सो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। नाउ विल सी दिस क्वेश्चन ऑन आवर पावर एंड विल रैप आवर लेक्चर। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस इज दिस 20 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड एयर, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एयर, ठीक है। ये मेरे को इसका लेंस निकालना है, व्हेन इट इज μ1 जो है आपका एयर है, और ये आपको दे रखा 1.5। सेकेंड मेरे को निकालना है कि व्हेन यू प्लेस्ड योर व्हेन यू इमर्स द लिक्विड इन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, ठीक है, जब आप इसमें डाल देते हो, व्हेन यू पुट इट इन सम, ठीक है, यू पुट इट इन सम लिक्विड जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है। तो सिंपल है, अपने को पावर क्या होती है आपकी 1 बाई फोकस, ठीक है। फोकस आपको पता है दैट इज़ 1 बाई एफ इज़ नथिंग बट म्यू रिलेटिव -1 डिवाइडेड बाय 1 बाई R1 -1 बाई R2, ठीक है। तो ये आपका ये तो सेम रहेगा दोनों में, आपका ये चेंज होएगा, ठीक है। पहले वाले केस में आपका कितना आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1, सेकेंड वाले केस में जो आपने वाटर में अपने किसी लिक्विड में डाला तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1.25, ठीक है। तो इस दोनों से हम लोग 1 बाई एफ निकाल लेंगे, इससे पावर आ जाएगी हमारी। तो पावर इन द एयर में कितनी होगी, दैट इज़ म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है हमारा ग्लास का, म्यू ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू एयर, ठीक है, दैट इज़ म्यू एयर का 1 हो गया, तो 1.5 माइनस 1 हेयर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी पॉजिटिव और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी नेगेटिव, तो -0.20 डाल दिया, ठीक है। 20 सेंटीमीटर है, -0.20। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा, पावर आ गई 5 डायोप्टर। सेम अब यहाँ पे सेकंड में लेना है, जब मेरा लिक्विड में है तो हेयर वी आर गोइंग टू टेक द म्यू रिलेटिव विल बी नथिंग बट योर म्यू ग्लास ओवर म्यू लिक्विड, ठीक है। तो दैट इज़ 1.5 ओवर 1.25 ले लोगे यहाँ पे, ठीक है, -1। ये सेम रहेगा आपका बिकॉज सेम लेंस है मेरा, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी हेयर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी हेयर नेगेटिव, ठीक है। तो वैल्यू डाल दी माइनस यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 2 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को रेशियो निकालना है, रेशियो पी एयर डिवाइड बाई पी लिक्विड कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2.5, ठीक है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी द इमेज फॉर्मेशन पे फोकस करेंगे अब लेंसेज के, ठीक है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ऑलराइट, थैंक यू।